Morning everyone, welcome to our YouTube channel Math by V Saluja. In this video we'll talk about class 11th mathematics. In this video we'll talk about set theory. We'll start the mathematics by the first chapter of class 11, that is sets. Basically what is set? Set is the collection of well-defined objects. Collection of well-defined objects. If you like our channel, do like, subscribe our channel. Please leave the comments if you want any kind of help in mathematics. Collection of well-defined objects are known as sets. For example, collection means we'll apply curl braces. Firstly, we'll apply curl braces. Collection means we want to collect some data. Okay, so we apply curl braces here. Of well-defined objects means the objects are defined well. For example, like we know the word promise. We want to make a set of the English letter promise. So we first apply curl braces and we write the letters of promise are P, R, O, M, I, S and E, in which no letter would be repeated. Remember that in a collection of well-defined objects, no letter would be repeated. If a letter is repeated, we'll not write it again in the collection. We write just the single alphabet only one time. So this is the collection of well-defined objects. Now we'll do the representation of set. Representation of a set. Look, what we do in a representation of a set, there are two types to represent a set. The first is tabular form, and the other one is set builder form. The first one is tabular form, the other one is set builder form. In a tabular form, you can write the objects by differentiating a comma. For example, you can write it as 2, 4, 6, 8 या फिर collection of, you can say that even numbers. The set can be finite or the set can be infinite. Set can empty be also. More example, you can say that like I write the words as mathematics. M-A-T-H comma E. Again, M is repeated, so we'll not write it again. A is repeated, we'll not write it again. T is repeated, so we'll not write it again. I, C and S. That is collection of well-defined objects of the word mathematics. In a set builder form, we'll represent a set by a variable. Like we introduce a variable, like I want to write the set again in the form of set builder form. I want to make a set of even numbers like I made in tabular form. So in a set builder form, how can we make it? We firstly write a variable like x. X is representing an even number. हमने सेट बनाना था ना इवन नंबर का, तो हमने क्या किया, हमने एक वेरिएबल x लिया, हमने उसको लिखा कि x जो है वो रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ इवन नंबर्स. अगर हम इसको टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो हम लिखेंगे 2, 4, 6, 8. ये हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है सेट ऑफ इवन नंबर्स. अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो आप उसे लिखेंगे कि एक वेरिएबल x, y, z, आप जो मर्जी लीजिए, वो रिप्रेजेंट कर रहा है इवन नंबर के सेट को. Next, we'll talk about different types of sets. Next, we will talk about different types of a set. Different types of a set में सबसे पहली जो type आती है, that is an empty set. Empty set मतलब एक ऐसा set जिसके curl braces में कोई भी element ना हो, मतलब वो सेट बिल्कुल ही खाली हो, उसको हम बोलते हैं एम्प्टी सेट. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं बोलूँ मैं सेट बिल्डर फॉर्म में एक सेट को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, इसमें उन वेरिएबल्स की कलेक्शन है सच दैट x² - 1 इज इक्वल टू 0 एंड x बिलोंग्स टू
सेट ऑफ रियल्स। मैं अगर यहाँ पे प्लस लिखूँ तो मैं आपको समझा सकती हूँ। फॉर एग्जांपल इसमें उन वेरिएबल्स की कलेक्शन है सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1। एक्स स्क्वायर अगर -1 के बराबर है, अगर स्क्वायर उधर जाएगा तो ये बन जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -1। अंडर रूट ऑफ -1 ऑलवेज स्टैंड्स फॉर आयोटा, so that is plus minus iota, but iota is a complex number. It belongs to set of complex numbers and we want to write set of real numbers. तो ये वैल्यू x की पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट है, बट हमें रियल नंबर के एलिमेंट्स लिखने हैं, सेट ऑफ रियल्स के एलिमेंट्स लिखने हैं, तो वो हम लिख नहीं पाएंगे। इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा? एम्प्टी। इसमें उन वेरिएबल्स की कलेक्शन लिखनी थी जिनका आंसर एक रियल नंबर आए, बट आंसर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है जो हम यहाँ नहीं लिख सकते हैं, इसलिए इस सेट का आंसर होगा एम्प्टी। नेक्स्ट जो टाइप हमारे पास आ रही है दैट इज सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट स्टैंड्स फॉर एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट हो। एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट आए उसको हम बोलते हैं सिंगलटन सेट। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको क्वेश्चन दूं कि इसमें उन एलिमेंट्स की कलेक्शन है जिसमें 1 ऐड करने पर उसका आंसर कितना आएगा? 0, एंड द वेरिएबल वुड बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल्स। तो हम इसको अगर सॉल्व करें, इसमें उन वेरिएबल्स की कलेक्शन है सच दैट x इज इक्वल टू -1। x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल्स, यस -1 बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल्स, तो इस x का आंसर क्या आया हमारे पास? -1। देखिए सेट में एक सिंगल एलिमेंट आया, जिस कलेक्शन में एक सिंगल एलिमेंट ही एग्जिस्ट करता है उस कलेक्शन को बोलते हैं सिंगलटन सेट। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट स्टैंड्स फॉर एक ऐसा सेट जिसमें आप काउंट कर सकते हो कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। जैसे मैंने इस सेट में 3 एलिमेंट लिखे तो मैं इस सेट को बोलूँगी फाइनाइट सेट। नेक्स्ट हमारे पास जो सेट आ रहा है हम उसको बोलते हैं इनफिनिट सेट। एक ऐसा सेट जिसमें हम काउंट नहीं कर सकते कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, उस सेट को बोलेंगे इनफिनिट सेट। अगर मैंने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होता तो मैं लिखती इसमें उन एलिमेंट्स की कलेक्शन है जो एलिमेंट सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का पार्ट है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, तो वो एलिमेंट्स जो नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं वो एक इनफिनिट सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास जो सेट आ रहा है वो है इक्वल सेट्स। एक ऐसा सेट दो ऐसे सेट जिसमें एलिमेंट्स, मैंने 2 सेट लिए, एक सेट का नाम मैंने ए लिया, दूसरे का नाम मैंने बी लिया। कैपिटल लेटर्स में हम सेट के नाम को नोटेट करते हैं। इक्वल सेट्स का मतलब अगर हमने पहले सेट में भी उतने ही एलिमेंट लिए जितने एलिमेंट दूसरे सेट में हैं और वो दिखने में भी सेम हो, तो इन सेट्स को बोलते हैं इक्वल सेट्स। 2 sets are said to be equal if they are same in counting and also they are looking same। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो है इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट स्टैंड्स फॉर, इसमें हम वैसे ही जितने नंबर ऑफ मर्जी सेट्स आप ले सकते हैं उनको अगर आपने इक्विवेलेंट शो करना है तो इक्विवेलेंट स्टैंड्स फॉर वो काउंटिंग में तो सेम हो बट वो देखने में सेम चाहे ना हो। जैसे ये काउंटिंग में 3 एलिमेंट है, इस सेट में भी काउंटिंग में 3 एलिमेंट है, तो ये सेट इक्विवेलेंट हो सकते हैं पर इक्वल नहीं हो सकते। इक्वल होने के लिए उनको देखने में भी सेम होना पड़ेगा, इक्विवेलेंट के लिए उनको देखने में अलग होना पड़ेगा बट काउंटिंग में सेम होना पड़ेगा। उसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है उसको बोलते हैं सबसेट। जो टॉपिक हमारा आता है